انسان اپنی زندگی کا خود بادشاہ نہیں ہو سکتا. جس کے نام سے پہلے یا پھر جس کے حقیقی نام سے پہلے مسلمان لگتا ہو یا پھر جس کے کاسٹ میں اسلام لگتا ہو یا جس کا اوتھینٹک مذہب ریلیجن اسلام ہو، وہ کبھی آزاد نہیں ہو سکتا. یہ میری بات نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جس وقت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا تھا، اس وقت سے پہلے کی جو زندگی عمر فاروق کی تھی وہ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں. یا پھر یوں کہہ لیجئے کہ ان کے قصے بڑے مشہور ہیں، یا پھر اس سے آسان انداز میں یوں کہہ لے کہ اس سے آزاد آدمی پورے مکہ کے اندر کوئی نہیں پایا جا سکتا تھا. جب ایسا بندہ اسلام قبول کرنے کے در پہ آیا، رسول اللہ کے ہاتھ سے ہاتھ ملایا، رسول اللہ کو رسول اللہ مانا، نبی اللہ نے تسلیم کیا، اور اسی طریقے سے آپسی دوستی میں صحابیت کا انہیں لقب ملا، وہ عمر فاروق نے اپنی جاری زندگی رسول اللہ کے قدموں میں ڈال کر یہ کہا، آج تک جو میں نے زندگی جی ہے وہ میری زندگی تھی، اب جو زندگی جیوں گا وہ رسول اللہ کے نام سے جیوں گا. کیا اسلام قبول کرتے ہی ان کے مذہب کے اندر یا پھر ان کے گھر والوں نے ان کو گھر سے نکال دیا تھا؟ ایک سوال. یا پھر اسلام قبول کرنے کے بعد یہ ایسا سمجھا گیا تھا کہ عمر اب ہمارے خاندان میں جھانک کر نہیں دیکھنا؟ ارے میرے عزیز دوستو بزرگوں، یہ پورے خاندان کے سب سے بڑے آدمی تھے. یہ خاندان نہیں بلکہ بڑے بڑے جتنی سلطنتیں مکہ میں یا پھر مکہ کے آؤٹ ایریا میں پائی جاتی تھی وہ سب حضرت عمر کے گھر کے سامنے سے گزرتے تو عزت و احترام سے جھک کر گزرتے تھے. یہ ایسا بندہ جس وقت اسلام قبول کیا ہے اس کے بعد رسول اللہ کو یہ کہا ہے کہ میری زندگی اب آپ کے نام ہے. تو یہ کہنے کا مقصد آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ آج کے جمعہ کا ٹاپک کس رخ کی طرف جا رہا ہے، آج کا ٹاپک کس چیز کی طرف پھیرا جا رہا ہے. صاف اور سیدھی بات، نوٹ آف دا پوائنٹ اگر میں یہ کہوں تو صاف سیدھی بات یہ ہے کہ آج کے دور میں مسلمان اپنی زندگی میں بے تاج بادشاہ بنے ہوئے ہیں. آج کے دور کا مسلمان، سچ کہہ رہا ہوں، کروڑ پتی ہو یا لکھ پتی ہو، اپنے آپ کو یا پھر نیچے ذات کا یا پھر نیچے کمانے کا یا کچھ مچ زندگی گزارنے والا مسلمان بھی اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے اور یوں سمجھ کر اپنی زندگی گزار رہا ہے، میں اپنی زندگی کا خود مالک ہوں. یہ جو کلچر ہے، ہومنزم جس کو کہا جاتا ہے، لبرلزم جس کو کہا جاتا ہے، خود مختاری، اپنے آپ میں سیلف جینا، اپنے آپ کو سیلف انٹروڈکشن کرانا، یا پھر اپنے آپ کو ایک طرح میں ہی ہوں یہ کہلوانا، میرے اوپر کسی کا ہاتھ نہیں چل سکتا ہے، یہ سامنے والے کو تعارف کرانا، یہ حقیقت میں ابھی سچا پکا مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. آپ جا کر دیکھیں کتنے ہمارے ایسے مسلمان ہیں جن کی زندگیاں رسول اللہ کی بتائی، ٹھیک ہے 1100% نہ صحیح 50% بھی اگر رسول اللہ کی بتائی ہوئی زندگی پر آ رہی ہو تو میں یہیں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. کتنے ایسے لوگ ہیں جو رسول اللہ کی بتائی ہوئی تعلیمات پر اپنی تعلیمات کو ڈھالنا چاہتے ہیں، یا پھر کتنے ایسے لوگ ہیں ڈھالنا چاہتے ہیں یہ الگ کانسیپٹ ہے، ڈھال رہے ہیں یہ الگ کانسیپٹ ہے. رسول اللہ کی زندگی کے ساتھ اپنی زندگی کو ملانا بھی لوگ نہیں چاہ رہے ہیں. حیرانی کی بات یہ ہے، اور یہ کہتے ہوئے لوگ نہیں شرمتے ہیں
کہ وہ 90s کا زمانہ تھا, وہ ایک الگ سینچری تھی جس کے اندر رسول اللہ آئے اور انہوں نے اپنی زندگی مختصر کر کر چلے گئے. یاد رکھو میرے بھائیوں, زندگی کے اندر کسی قوم کو اگر ترقی کرنا ہے تو وہ اپنے فیوچر کو دیکھنے کے لیے پریزنٹ کے آئیڈیلز کو دیکھتی ہے. اللہ کی قسم, مسلمان کو اگر ترقی کرنا ہے, آگے جانا ہے, تو وہ آج سے 1400 سال پیچھے جانا ہوگا, تبھی وہ آگے جا سکتا ہے. یہ ضابطہ ہے, یہ رول ہے مسلمانوں کی زندگی کا. مگر ہم نے اپنی زندگی کو بڑا مختصر بنا لیا ہے. جمعہ کے اعلانات, جمعہ کے بیانات ہوں گے, یا اسی طریقے سے آڈیٹوریمز ہوں گے, یا اسی طرح بڑے بڑے ماحول میں بیانات چلیں گے, سب کچھ ہوگا. بہرحال اللہ نے دیا ہی 2 کان ہیں, اس کانوں کا مقصد ہی یہی ہے, سننا ہے پھر چھوڑنا ہے. بزرگان تھی, اس چیز کو پلے باندھنے کی ضرورت ہے, اس چیز کو پکڑے رکھنے کی ضرورت ہے, اس چیز کو مضبوطی سے کور کرنے کی ضرورت ہے. کیا میری زندگی قرآن پر آ رہی ہے؟ کیا میری زندگی رسول اللہ کی تعلیمات پر جم رہی ہے؟ کیا میری زندگی کے اندر میں اپنے اللہ کی تابعداری کر رہا ہوں؟ کیا میں اپنی زندگی کے اندر بہتر مسلمان بن رہا ہوں؟ نہیں. آج ہمارے حالات ایسے ہو رہے ہیں کہ آج مسلمان اپنے آپ کی زندگی میں جھوٹ سے پیچھے نہیں ہٹ رہا ہے. چاہے وہ تجارت کا معاملہ ہو, چاہے وہ اپنی زندگی کا سیلف معاملہ ہو, چاہے وہ ایک نیک شوہر بن کر زندگی گزار رہا ہو, چاہے وہ اسکول کے اندر ٹیچر بنا ہوا ہو, یا پھر حکومت کے لائن کے اندر رہ کر ایک بہت بڑا عہدہ قائم کیا ہو, ان سب کے اندر دیکھیں رسول اللہ کی بیسک تعلیمات, بیسک فاؤنڈر یا یوں کہ لے نیچے کی تعلیمات مکمل چھوٹ چکی ہے. اور لوگ یہ کہتے ہوئے بھی نہیں شرم رہے کہ یہاں اگر میں رسول اللہ کی تعلیمات کو فالو کروں گا تو لوگ مجھے پرانا آدمی سمجھیں گے, لوگ مجھے اولڈ سمجھیں گے. میرے بھائیوں, رسول اللہ کی تعلیمات کو تم دیکھو تو صحیح, آؤ تو صحیح. اسی لیے میرے عزیز دوستو, قرآن جو میں نے ابھی خطبے میں آیت پڑھی, قو انفسکم واہلیکم نارا, آپ کو بھی بچنا ہے, آپ کی آل اولاد کو بھی بچانا ہے. یہ 2 چیزیں ہوں گی تو اللہ کہیں گے کہ یہ بندہ سچا پکا مسلمان بن کر آج ہمارے بارگاہ میں آیا ہوا ہے, اس کے لیے مغفرت کے وعدے پکے کر دو. سوچ لو کتنے ایسے مسلمان ہیں جو ہم مسلمانوں کی اوتھینٹک کتاب, جس کتاب کو حقیقت میں اللہ نے آسمان سے نازل کیا, جبریل علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے پیارے حبیب کے پیارے منور دل کے اوپر قرآن اترا, وہ قرآن کتنے لوگ ایسے ہیں جو عربی فارم میں پڑھنے کی استطاعت رکھتے ہیں؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جو قرآن مجید کو عربک لینگویج میں پڑھنا جانتے ہیں؟ کتنے ایسے لوگ ہیں, یہ تو ٹھیک ہے جانتے ہیں, کتنے ایسے لوگ ہیں, اتنے سارے بیانات ہم نے سنے, اتنا سارا قرآن کا عظمت کا معاملہ ہمارے دلوں میں آیا, کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنی 6 مہینے ابھی پیچھے جا کر دیکھیں, 6 مہینے پہلے کہیں نہ کہیں آپ نے یہ سنا ہوگا قرآن مجید, یہ قرآن اللہ کا مقدس کتاب ہے, مجھے اپنی آنکھوں سے پڑھنا چاہیے, مجھے سمجھ کر عربک لینگویج میں پڑھنا چاہیے. کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ایک پارہ درست کیا ہو, جنہوں نے ایک یاسین درست کی ہو, جنہوں نے ایک واقعہ درست کیا ہو, جنہوں نے سورہ ملک پڑھنا اپنے آنکھوں سے درست کیا ہو. یہ میں کسی کو نیچا دکھانے کی بات نہیں کر رہا ہوں میرے بھائیوں. آپ چونکہ یہ جانتے ہیں کہ میں ایک مفتی ہوں, میں ایک عالم ہوں, میں ایک حافظ ہوں, یعنی مطلب ایک اسلامک اسکالر ہوں. آپ اگر مجھے یہ پوچھیں کہ گزشتہ 6 مہینے میں آپ نے دنیا کے اندر کیا چیز کو دیکھ کر اس کے اندر آپ نے قدم رکھنے کی کوشش کی, سب سے پہلی چیز میرے بھائیوں بزرگوں, دنیا کے ماحول میں آ کر کون سی چیزوں کی مجھے ضرورت پڑی, وہ ان 6 مہینوں کے اندر 7 چیزوں کی ضرورت پڑی, اور 7 چیزوں کے اندر میں صرف 40% اپنے آپ کو کور کر سک رہا تھا. الحمدللہ آج وہ 6 مہینے گزرے, آج میں 90% اس کے اوپر قادر ہو چکا ہوں. میں نے اس کے اوپر کوشش کی, میں نے اس کو سمجھا کہ میں نے اس کو پڑھنے کے بارے میں
एक अपने आप का वक्त निकाला तो मैंने उसको पढ़ लिया। ये मैं अपनी बात इसलिए बता रहा हूं कि शौक था, क्योंकि इंसान उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक कि उसके अंदर शौक जैसी चीज ना आए। इंसान कभी अपनी जात से कोई काम नहीं, ये नोट कर लीजिए आप, इंसान कभी अपने जात से कोई काम कर ही नहीं सकता है। अगर मैंने यहां से आपको एक टास्क दे दिया कि एक हफ्ते का ये टास्क है कि आप इतने सारे टॉपिक्स के अंदर कौन सा टॉपिक आप चॉइस करते हैं वो क्लियर कर कर नेक्स्ट वीक आए, फिर उसके ऊपर मैं बाज़ाब्ता एक बयान करूंगा, फिर उसके बाद आप कहीं भी जाके उस चीज के टॉपिक का फॉर्म फिल कीजिए, फिर उसके बाद अपनी जिंदगी को 2-3 महीने के लिए खाली कर कर अपना एक कीमती वक्त निकाल कर उसके ऊपर फोकस कीजिए, फिर उसके बाद 2 महीने के बाद उस फोकस किए हुए काम के ऊपर अपनी जिंदगी को ढालिए। तो इस सच्चाई के साथ कह रहा हूं, ये सारी चीजें आपके शौक पे डिपेंड करती है। शौक अगर नहीं होगा कुछ नहीं कर सकोगे, कुछ नहीं। अगर आपको एक बड़ा बिजनेस खड़ा करना है, या आपको एक बड़ी एक कंपनी आपको लाना है, या फिर आपको एक बड़ा काम नुमाया कारनामा अगर करना है, तो याद रखो मेरे भाइयों, ना रात में जागने की जरूरत है, न दिन के अंदर उसका एक सोच लेकर चलने की जरूरत है। शौक अगर आपके अंदर आया तो आपके हाथ खुद ब खुद काम करेंगे। कितने ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े हिल्स यानी पहाड़ों के ऊपर कार चलाते हैं, देखे होंगे आपने, बड़े बड़े ट्रक चलाते हैं। आप उनके ट्रक चलाने के स्टाइल को भी देख लेंगे तो डर जाएंगे कि कैसे ये टर्न कर रहा है, कैसे ये मोड़ रहा है। क्या उसको उस वक्त में ये ख्याल रहता क्या मेरे को यहां ऐसा टर्न करना है? उसके हाथ खुद ब खुद घूम जाते हैं, उसका ब्रेक खुद ब खुद लग जाता है, उसका क्लच खुद ब खुद पावर में आ जाता है। उसकी सोच पूरी वहां पर फोकस होने के सबब वो सारा बड़ा ट्रक, वो ट्रक में रखा गया कितने की टनों का लोड आराम से मंजिल तक पहुंचाता है। ये शौक से स्टीयरिंग फिराना, या फिर ताकत लगा के स्टीयरिंग, ताकत लगा के ब्रेक, ये ताकत का गेम नहीं है मेरे भाइयों, ये गेम है आपके शौक का, ये गेम है आपकी मेहनत से ऊपर एक चीज है, उसको कहते। लोग कितने हैं, मेरे से ज्यादा आप देख रहे होंगे मार्केट के अंदर, एक आदमी है पिछले 7 साल से मेहनत कर रहा है, नतीजा कुछ भी नहीं है। मेहनत भी जरूरी नहीं है। एक अहम चीज मैं आपको आप सोच रहे होंगे कि ये बंदा मेहनत को भी असल नहीं कर रहा, मैं सही कह रहा हूं, मेहनत भी अभी नीचे की चीज है। मेहनत से अगर ऊपर कोई चीज है तो वो आपका शौक है। शौक, पहले शौक को पालना होगा, पहले आप शौक को पावर में लाना होगा। ये एक ऐसा जनरेटर है, या फिर यूं समझ लें एक ऐसा बॉक्स है, इसको जितना तुम पावर में लाओगे, या फिर मैं अपनी जिंदगी में जितना पावर में लाऊंगा, बड़ी से बड़ी चीज आपके लिए आसान होगी। अल्लाह की कसम खाकर कह रहा हूं। रसूलुल्लाह, चलो इसको थोड़ा रसूलुल्लाह की जिंदगी से जोड़ लेते हैं, चूंकि इस्लामिक स्कॉलर हैं तो यहां से जोड़ेंगे। आप अपने माइंड के एतबार से आप अपनी 20 साल 30 साल 25 साल की लाइफ से उसको जोड़ लो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के अंदर अकेले थे, अकेले, बस अकेले मतलब वो अपनी लाइफ के अकेले बंदे थे। चूंकि जब उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा तो कोई साथ नहीं दिया, कोई उनका हमसर नहीं बना, कोई उनके टच में नहीं आया। आप बताइए, अगर आपके मोहल्ले में अगर आपको इस तरीके से अगर किसी ने जलील किया, फर्स्ट जहन आपका जाएगा कि वो एरिया छोड़कर किसी और एरिया में अपने को कन्वर्ट होना है, खत्म चले जाना है, ये आपका जहन बनेगा। रसूलुल्लाह का शौक देखिए, मुझे इसी गलियों में रहना है, मुझे इसी मक्के के दामन में पड़ना है, मुझे इसी बाशिंदों के दरमियान रहना है, और यहीं रहकर एक अकेले अल्लाह की और मेरे रसूलुल्लाह होने की सच्ची दावत देना है। और चंद सालों के बाद अल्लाह जिब्रील के जरिए से कुरान उतारेगा, वो सारे रूल्स रेगुलेशन मक्का के अंदर लागू करना है। ये बंदा उस वक्त सोच रहा है जिस वक्त अभी ना अबू बकर हाथ को आए थे, ना उमर जैसा बंदा हाथ को आया था, अकेला तने तनहा बंदा
मक्का की तपती हुई रेत के गारों में जाकर ये डायग्राम तैयार कर रहा है। अल्लाह की कसम कुछ ही साल लगे, 9 साल 12 साल, एक कलील मुद्दत है, ये कोई लंबी मुद्दत नहीं है। 12 साल यूं गुजर जाते। 12 साल रसूलुल्लाह ने ऐसी जम के मेहनत की। रसूलुल्लाह जब फतेह मक्का करने के वास्ते मदीना से रिटर्न आए थे, उस वक्त सहाबा और वो लोग जिन्होंने रसूलुल्लाह के खानदान को ऐसा कत्ल किया था, आप सुन और पढ़ भी लेंगे तो कांटे खड़े हो जाएंगे। हमजा के टुकड़े किए गए थे। बिलाल की छाती या फिर बिलाल की पीठ पर ऐसा बड़ा चट्टान रख दी गई थी। वो सारे लोग आकर रसूलुल्लाह को ये कह रही, या रसूलुल्लाह आप हाथ आगे कीजिए, हम आपके हाथ पे इस्लाम कबूल करना चाहते हैं। डर के मारे नहीं। हालांकि मैं एक और चीज सुना रहा हूं, इसमें ये चीज छूट गई, वो ये देखें आप, चूंकि ये किस्सा इससे रिलेटेड है तो बता दिया। अब यहां पे जब रसूलुल्लाह मदीना से आए हैं, अंदर जब इंटर हो रहे थे मक्का के, वहां साफ ऐलान कर दिया रसूलुल्लाह ने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहां आज के बाद किसी औरत पे जुल्म नहीं होगा, किसी बूढ़े की तरफ तलवार नहीं उठेगी, बच्चे मामून हो जाएंगे। सिर्फ झगड़ा उनसे होगा जो ये कह दे कि हम इस्लाम को नहीं मानेंगे, बस उन्हीं के दरमियान हमारा मुकाबला होगा। ये कैसा ऑफिशियल ऐलान था। अल्लाह के रसूल चाहते थे तो सब कुछ करते थे। क्यों? 1000 का मजमा था सहाबा के साथ, वो चुन चुन के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदला लेते थे। ये एक हुआ वाकये का शिक। दूसरी शिक सुनिए इस वाकये की, यानी दूसरा जो अटैचमेंट है इस वाकये का, जो बिलाल को तकलीफें दी गई, जो बिलाल को मारा गया, वो खातून के बारे में बिलाल हजरे अस्वद के सामने बैठकर रो रो कर ये दुआ कर रही, अल्लाह हिंदा को तू अपने इस्लाम की तौफीक दे। अब बताएं ये कौन सा तरीका था? इतना सब होने के बाद बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु और इसी तरह हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु के टुकड़े करने के बाद और उनकी खोपड़ी में शराब पीने वाली खातून को सजा देने का कोई सहाबी नहीं सोच रहा, खुद रसूलुल्लाह नहीं सोच रही, हालांकि उनकी हिदायत की दुआ की जा रही है। ये शौक है, ये शौक एक ही था। क्या था? बस मुझे इस गलियों के अंदर से इस्लाम को गुंजाना है। आज तक देखे पूरे इस्लाम के जरिए उसी मक्का का क्रेडिट चले जाता है जो पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम है ऐसी कोई मिसाल जो आप पेश करें, जो मैं पेश कर सकूं? अगर आप अपने मोहल्ले के अंदर माशाल्लाह गाइडेंस के नाम से जाने जाते हैं या फिर कॉर्पोरेटर के नाम से जाने जाते हैं, या चलो ठीक है इतनी बड़ी पोस्ट ना भी सही, अगर आप बस्ती में आप नामचीन हैं, आपके अंदर एक किस्म का जुनून है, तो आप दिल पर हाथ रखकर कहें कि क्या मैं इस्लामी एतबार से उस मोहल्ले के अंदर, उस गांव के अंदर रसूलुल्लाह के तरह या रसूलुल्लाह की तालीम को मैंने जिंदा किया है? मेरे भाइयों, सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक रसूलुल्लाह की सारी तालीमात मौजूद है। आप किस में उठाएंगे? आपको अगर पॉलिटिशियन में घुसना है तो वो सारी चीजें आपको इस्लाम में मिलेंगी। मशवरा करें, आप देखें आप कितने ऐसी किताबें, मैं खुद आपको 17 से 18 किताबें बताऊंगा कि आपको हुकूमतों के दरमियान में रहकर अपने इस्लाम को किस तरीके से जोड़ना है। बाज़ाब्ता हमारा इस पे एक वर्कशॉप हो चुका है। और इसी तरीके से आप अपने घर के अंदर रहते हुए, शौहर के नाम से रहते हुए, अपने घर को इस्लाम और इस्लामियात में कैसा ढाल सकते हैं, ये देखें आप कितनी प्यारी प्यारी चीजें हैं। लोग हमारे जहनों में क्या आता है, अब मुझे पूरे इस्लाम, आज का बयान इसी पे हुआ, अब मैं जाकर नबी ने जिस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम फैलाया, मैं पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम नहीं, माफी चाहता हूं, आप अपने घर में इस्लाम फैलाएं। आप अपने घर में इस्लाम फैलाना शुरू कर दिए और वहां से आप कंप्लीट हुए, अल्हम्दुलिल्लाह। कदम रखें अपने रिश्तेदारों में, वहां से भी आप कंप्लीट हुए, बिफज़लिही ताला साल लगेंगे। अब उसके बाद रिश्तेदारों की रिश्तेदारियों में आए आप, उस वक्त तक अल्लाह ना करे अगर आप इस दुनिया से जाएं तो अल्लाह आपके इस शौक को, तड़प को, लगन को देखकर याद रखना
आपके खानदान से औलिया अल्लाह को पैदा करेगा इंशाअल्लाह। आपने तो इतना किया, आपके जरिए से अल्लाह जितना कराएंगे आप तसव्वुर नहीं करेंगे, और आपको अल्लाह वह सब कुछ दिखाएगा। और इसी के साथ साथ अल्लाह कहेगा तेरा एक एक पैदा किया हुआ बंदा और तेरा शौक, तेरा लगन, ये सारी चीजें दुनिया में तो आ तो गया, मगर दुनिया में तेरी पूरी की पूरी रविश रह गई। इसी के बदले एक एक काम करने पर अल्लाह उसको जन्नत के बुलंदियां नसीब करते हैं। बंदा कहेगा अल्लाह मैं तो अभी जन्नत के निचले दर्जे में था, आज अचानक मेरा लेवल बढ़ क्यों गया, आज मेरी पोस्टिंग क्यों हो गई ऊपर, मैं प्रमोशन क्यों कर गया ऊपर तक। अल्लाह कहेंगे जो तूने दुनिया में एक काम छोड़ाया था, उस काम को तेरे खानदान वालों ने आज इतना बड़ा कर दिया, उसका क्रेडिट तो हम तुझे ही देना है, आज हम तेरे लिए ही तो रखना है उसके लिए, अल्लाह ये कहेंगे। इसीलिए मेरे भाइयों, हम अपने आप की जिंदगी को आजाद न समझे। आप जो कुछ कर रहे हैं, दिल, मन, तड़प, शौक, ये तीन चीजें मैटर करती है, इसमें अपने आप को लगाएं। जिस तरह, अब माफी चाहते हुए ये बात, जिस तरह हम अपने कारोबार को फोकस देके करते हैं, जिस तरह हम अपने कारोबार के अंदर रोजाना का और डायरी का मसला मेंटेन करते हैं, या फिर इसी तरीके से हम एक्सेल टैली के अंदर वो सारा निजाम महफूज कर रखे हुए, क्या हमारे इस्लाम का भी कोई एक्सेल टैली है? क्या हमारे कोई इस्लाम का भी कोई एक टाइम टेबल बना हुआ है? क्या मैं अपने इस्लाम का भी कोई एक शेड्यूल तैयार किया हुआ हूं? कितने ऐसे लोग हैं सच सच दिल से कहना कि गुज़िश्ता 1 महीने से मेरी तहज्जुद हुई है? कोई नहीं है। अल्लाह से तहज्जुद में मांगी जा, फर्ज तो कोई भी कर लेता है, फर्ज का तो कोई मसला नहीं है। अल्लाह से करीब जाके बात करो, अल्लाह से स्पेशल बात करो, अल्लाह से अलग जाके बात करो, अल्लाह से कहो कि अल्लाह मेरा ये मसला है, इसको कैसे हल करो। फिर अल्लाह उसके बाद आपको खौफ के जरिए से या फिर किसी अच्छे बंदे को मिला करके फिर उसके जरिए से वो मसले हल करेंगे। 80% मुसलमान जो परेशान है, अपनी जिंदगी के लिए भी परेशान, यहाँ चीखा जा रहा है, पुकारा जा रहा है, अपनी जिंदगी को इस्लाम पर लाओ, समझो, देखो, इस्लाम से हटके तो हम कोई काम ही नहीं कर सकते। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, फिर इसके बाद अब ये, चूंकि ये अब यहां से जो टॉपिक मैं 3 मिनट बोलूंगा बिल्कुल आज के जुमा से हटके है। कितने ऐसे मुसलमान जो हमारे, कितने ऐसे लोग हैं जो EMI के मसाइल से मुब्तला होकर अपनी जिंदगियों को परेशान कर रहे हैं। चूंकि मैं आपको एक हदीस से एक बात बताता हूं, अगर कोई आदमी अपनी जिंदगी को कर्जों के ऊपर रखना चाहता है तो अल्लाह रब, एक तो जरूरत है, एक है मजबूरी है, एक है आदमी के ख्वाहिशात। मैं साफ कह रहा हूं, आदमी के ख्वाहिशात कब्र की मिट्टी भरती है। अगर आपको सोने का एक पहाड़ भी मिल जाए ना प्रेजेंट, अभी नमाज के बाद, आप कहेंगे और एक मिलता तो मैं अपने बच्चों के लिए करता, ये मैं रख लेता। ये हमारा माइंडसेट है दुनिया के एतबार से। मेरे भाइयों, खुश कोई भी नहीं है, मुझे ये लेना है, मुझे ये लेना है। अब तो बेहतरीन शक्ल निकल गई, क्या निकल गई? कोई भी करोड़ों की, लाखों की चीज ले लो, किस्तों से अदा कर दो, उसके अंदर आप कितना इंटरेस्ट भर रहे हैं वो छोड़ दीजिए, वो अलग टॉपिक है। सूद है, हराम है, फुला है, चुना है, रख दीजिए थोड़ी देर, उसको लेंगे कभी किसी दिन। मगर याद रखो, ख्वाहिशात से पहले एक नाम आता है जरूरियात। क्या आता है बोलिए आप? जरूरियात। जरूरियात में आदमी पूरा हो जाए। भाई, मुझसे एक गाड़ी से काम चल रहा है, बस अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मसला हल है। हाँ, अगर अल्लाह ने आपको वसाअत दी है तो और कदम बढ़ाओ आप। मगर ये कंजेस्टेड लाइफ में लोगों को दिखाने के लिए, लोगों की वाह करवाने के लिए कोई EMI के दलदल में मत जाएं। EMI आपको बहुत खतरनाक दलदल में आपका वेलकम करता है। आपको मेरे से बेहतर मालूम है आपको। आप जब यूं समझ लें कि मैं जब इसके ऊपर रिसर्च करा, मैं जब पढ़ा, जो मुझे समझ में आई ये चीज, अगर गलत हो तो बता देना। आप अगर कोई चीज ले लिए, आपकी वो चीज थी 1 लाख, वो चीज आपने ले ली, तकरीबन उसके ऊपर लग के आया 20,000, तो ठीक है। जब आपने उसको ले लिया, आपने माशाल्लाह कंटिन्यूसली भर दिया वो पैसा, जो मंथ आना था उससे पहले पहले आपने पैसा अदा कर दिया। 1 साल का वो आपका किस्तवार मामला था, 1 साल का आप उसके अंदर भरना था। 1 साल होने से पहले पहले जो आप ये रेगुलर कंटिन्यूसली जो एकदम फोकस से भरे हैं ना, उसके बाद आपको खत्म होने से पहले पहले 50 कॉल आएंगे।
आप हमारे इस कंपनी के अवतार हैं, फुला हैं, वो हैं, आप जिस तरीके से अपना कर्ज हमारी अकाउंट के अंदर पर मंथ एकदम करेक्ट टू करेक्ट भरे हैं, आपकी मिसाल आप हैं। वो ये चढ़ा के आपके सामने एक और चीज पेश की जाएगी कि आपने 1 लाख का लिया, 1.5 लाख के और 4 लाख के ये चीजें और मौजूद हैं, और आप थोड़ा और आगे चले जाएं। मेरे भाइयों, 1 लाख की तो ताकत थी, जरूरत थी, आपने कंप्लीट किया, नहीं की बात नहीं थी। अब तुम यहां क्या कर रहे हो? ख्वाहिश की तरफ कन्वर्ट हो रहे हो। ख्वाहिश में अल्लाह की मदद नहीं है मेरे भाइयों, जरूरत में अल्लाह की मदद है। हाँ, मैं कहूंगा जरूरत है, अल्लाह जरूर देता है, ख्वाहिशात में अल्लाह साथ नहीं देता है। इसीलिए बंदा उसके बाद क्या करता है? दलदल में फंसता हुआ, जकड़ता हुआ इतने हाथ पैर मार लेता है। आपको बता रहा हूं, गुज़िश्ता मैंने एक रिपोर्ट का छोटा सर्वे किया, हैदराबाद जैसे बड़े मशहूर इलाके में मुसलमानों की रिपोर्ट आपके सामने पेश कर रहा हूं। 30% मुसलमान अपने बैंकों से लोन के कर्ज में उसका जो इंटरेस्ट आता है उसमें और ईएमआई के कई चक्करों में अपनी जान को हलाक करके सुकून से कब्र में सो चुके हैं। मेरे भाई, अल्लाह से हम जरूर ये तलब करें दुआ, अल्लाह जरूरत का मोहताज बना, ख्वाहिशात का मोहताज मत बना। अल्लाह जरूरत कंप्लीट हो गई, खुदा तेरा शुक्र है, आज मैंने मोटे चावल के साथ खड़ी दाल भी अगर मैंने खा लिया, अल्लाह पेट भर गया मेरा आज का। कल का खुदा तू ही है जो आज का खुदा था। इतना भी अगर आप सोचने वाले बन जाएंगे तो इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी सक्सेस हो सकती है। मेरे भाइयों, आप जानते हैं, चूंकि मैं यहाँ पे जुमा के जो अनावीन तय करता हूं वो मैं मुआशरे के प्रेजेंट हालात के जो होते हैं, मैं उसी की तरफ अपने आप को मुतवज्जे करने की, जो कि मुझे जो चीज की जरूरत पड़ी मैं अपनी उम्मत को ये चीज को एहसास दिलाना चाहता हूं। कोई जरूरी नहीं है जो मैं आज का ये पूरा बयान करा इसमें से हर एक बंदा अपने दिल पे ले ले क्या शायद मेरा ही है क्या, नहीं नहीं है तो हट जाएं। ये बयान जो होता है ये उमूमी बयान है, मुआशरा इसमें फंसता जा रहा है, इससे मुझे निकालने की कोशिश है। इतनी बात तय है, मैं ये बोला तो नहीं निकलेंगे लोग, धक्का लगने के बाद ही निकलता है इंसान। इसीलिए किसी ने क्या ही सच कहा था, इंसान की अकल बादम खाने से नहीं बल्कि ठोकर खाने से आती है। अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हम तमाम की जिंदगी में तरक्कियां नसीब फरमाए, ख्वाहिशात से बचकर जरूरियात में आकर अपनी जिंदगी को कंप्लीट कर लेने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।